तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी राइट नाउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज यू हैव टू जस्ट अप्लाई योर ब्रेन। ऑल राइट, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और टाइटल तो देख के आप समझ गए होंगे दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 7.2 of integration grade 12. Basically, this exercise is going to involve all those questions which are related to substitution. I'll just write it there for you. Substitution के related this exercise is based on. All right, as soon as I am going to show you some of the questions, you will be easily able to recall that कि सर इसके अंदर होने क्या वाला है. All right, so without wasting any time, just let's get started. Question number one, I'll just write it with another color. Question number one is saying that integration of 2x divided by 1 plus x square dx. All right, class. One thing that I'm able to notice over here very clearly is इस वाले part का differentiation already यहाँ पे present है. All right, so what I am going to do? I'm going to just take it, let 1 plus x square is equal to t, differentiating both the side with respect to x and t. So this is going to be 2x dx is equal to dt, and this thing is going to give me what? Bacha, now please have a look that 2x dx is already present over here, so I'm just going to simply replace it by dt, and 1 plus x square is going to be replaced by t. All right, so the very next step is going to involve one thing, that is going to be integration of dt upon t, and the final answer that we are going to get is exercise 7.1 को please remember करो, and this question is now a question of exercise 7.1 where we are going to apply the direct method only. All right, so this is going to give us log of t plus c, and we have considered t as 1 plus x square. The final answer is going to be log of 1 plus x square plus C. I hope this question is clear to each and every one of you. All right, now moving on to the next question. The next question which is there in front of us is again a very simple part. Question number two. Question number two is saying that integration of log x ka whole square divided by x multiplied by dx. All right. So as soon as I'm going to just see जहां पे भी मुझे log x दिखाई दे तो मुझे पता है that differentiation of log x is 1 upon x. Is 1 upon x present here? Yes sir, this is present. तो देखो 1 upon x तो ये रहा. तो just simply take let log x is equal to t, तो ये हो जाएगा 1 upon x dx is equal to dt. Is this thing clear? But what you need to do in with me is कि as soon as I'm just going to write the question in front of you, you have to just pause the screen, solve it then and there, and just resume the screen in front of you, because you have to do practice along with that, because we are on exercise 7.2. As soon as you are going to progress with it, you have to apply your own brain. All right, I think if this thing is clear to each and every one of you, let's get started. जैसे ही मैंने इसको ये किया तो आई एम एबल टू सी दैट कि सर ये वाला पार्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इस वाले को dt लिख दो, एंड दिस log x कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय t. So what do I have it in front of me? Integration of t square dt, and that is going to be t की power 3 upon 3 plus c. Just put on the value of t in this question. So this is going to be log x की cube divided by 3 plus c. This is going to be the answer in front of us. All right, class. Now moving on to the next question. That is question number third. Question number third, I can say that it is quite important, just considering that कि इसके अंदर directly substitution आपको दिखाई नहीं देगा. You just have to just make it a substitution question. So this is going to be 1 upon x plus x log x dx. Is this thing clear to each and every one of you? Now what we are going to do is इसके अंदर से 1 upon x common ले लेते हैं. तो this is going to be x 1 plus log x dx. Now I will take what let 1 plus log x को ले लेता हूँ मैं t. Alright, 1 का differentiation is 0 and log x का होता है 1 upon x dx is equal to dt. Am I able to see 1 upon x dx over here? So just simply replace it by dt, and 1 plus log x to be replaced by t. Alright, as soon as I have this question in front of me, तो ये मेरा हो जाएगा dt upon t, एंड इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा log of t plus c. Just simply replace by t, so this is going to give me log of 1 plus log x plus c. I hope this thing is clear to everyone. All right,
ये शुरुआत के क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल कंसिडरिंग दैट सब्स्टिट्यूशन इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is saying that integration of sin x multiplied by sin और ब्रैकेट के अंदर cos x dx. ऑल राइट, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos x का होता है माइनस साइन. तो बेसिकली मेरे को ये अंदर वाली टर्म हटानी है और ये वाली टर्म हटानी है सो दैट आई कैन जस्ट सिंपली इंटीग्रेट इट. ऑल राइट, तो आई विल जस्ट लेट cos x टू बी t. तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt. नाउ बच्चा प्लीज नोट दैट द कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स यूज टू डू इन द एग्जामिनेशन इज, बच्चों यू हैव टू सी दैट दिस इज द डिफरेंशिएशन. cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x. ऑल राइट, यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो सम स्टूडेंट यूज टू मिस आउट दिस नेगेटिव साइन विच मे लीड टू इनकरेक्ट आंसर. ऑल राइट, तो ये वाला पार्ट मेरे पास आ गया. वॉट एवर आई नीड आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और जो मुझे नहीं चाहिए उसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा. तो इसमें माइनस साइन नहीं चाहिए, तो दिस इज गोइंग टू बी साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी. बच्चा व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ इज इस वाले पार्ट को जस्ट रिप्लेस कर दो माइनस डी टी के साथ, एंड वी आर रेडी टू गो विद द सोल्यूशन. दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी, और ये अंदर साइन हो जाएगा साइन ऑफ टी डी टी. इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी सर आपने हमें बताया था माइनस ऑफ कॉस, तो दिस इज माइनस पहले ही ऑलरेडी बाहर था, एंड दिस इज ऑफ माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी. टी को रिप्लेस कर दो एंड दिस इज गोइंग टू बी गिवन एज कॉस cos x plus c. I hope this question was very simple in front of you, and इसी तरीके से आगे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे. All right, now moving on to the next question, that is question number 5. Question number 5 कह रहा है integration of sin ax plus b and cos of ax plus b multiplied by dx. इसके अंदर से सर व्हाट डू वी हैव टू डू? या तो इस वाले को टी ले लो या तो इस वाले को टी ले लो, एंड यू आर सिंपली रेडी टू गो विद दिस पार्ट. एंड सर करते कैसे हैं एक बार प्लीज बता दोगे? यस, आई विल टेल यू. इस वाले क्वेश्चन में एक आपका कंसेप्शन नॉलेज इज गोइंग टू बी टेस्टेड जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के साथ राइट साइड में इफ ऑल ऑफ यू आर एबल टू नोटिस कि मैं लेट वाला पोर्शन राइट साइड में लिख रहा हूँ, सो इट इज वेरी क्लियर फॉर द एग्जामिनर एज वेल कि टेस्ट कर लेगा कि बच्चे ने क्या लेट किया, एंड इट इज नॉट creating any kind of confusion on the left hand side. All right, so simply the same way you are going to write it in the examination, it will make your paper look more presentable. I hope this is clear. Bacha, I will be letting this let sin of ax plus b uh, इज इक्वल टू टी. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और अंदर वाले टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी दिस. अगर ये इंटीग्रेशन होता तो उसे डिवाइड करते हैं, एंड जस्ट बिकॉज इट इज डिफरेंशिएशन तो अभी आई जस्ट मल्टीप्लाइंग विद दिस. आई थिंक थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको पिछला वाला चैप्टर, नॉट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स वाला पार्ट. ऑल राइट, बट सर मुझे एक चीज याद आ रही है कि सर यहाँ पे तो बस यही है, हमारे पास ए एक्स्ट्रा आ रहा है. व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन की वॉट एवर वी नीड टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टेकन ऑन द राइट हैंड साइड. बच्चा प्लीज से अलोंग विथ मी, एंड साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ. कोई भी रफ पेपर है कुछ भी है जस्ट लेके बैठ जाओ. आई डो नॉट नीड अ फेयर वर्क ऑफ योर्स, बट आपका ब्रेन शुड बी वर्किंग एट दिस टाइम वेरी क्लियरली. ऑल राइट, तो मैंने क्या किया, दिस इज गोइंग टू बी कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी डी टी, एंड यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी डी टी अपॉन ए. जस्ट सिंपली इसको रिप्लेस कर दो, एंड दिस इज गोइंग टू गिव इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए. यहाँ पे आ गया डी टी, और ये साइन ए एक्स प्लस बी मैंने लिए लिया था टी, तो दिस इज गोइंग टू बी टी डी टी, और ये वाला पार्ट हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया विच इज गोइंग टू बी दिस पार्ट. ऑल राइट, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज गोइंग टू वन अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन अपॉन टू ए. टी को रिप्लेस कर दो इसके साथ, दिस इज गोइंग टू बी साइन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर यू. इसके अंदर यही वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था विच यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ. ऑल राइट, आई एम जस्ट इरेजिंग इट सो दैट आवर पेपर इज नॉट डिस्टर्ब्ड. ओके, now class, let's move to another question. Now question number 6. What question number 6 is saying to all of us that कि सर इंटीग्रेट कर दो ए एक्स प्लस बी डी एक्स. ऑल राइट, दिस क्वेश्चन कैन बी इजिली डन इन टू वेज.
इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट तो इस वाले क्वेश्चन को आप तुरंत कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शो यू द सब्स्टिट्यूशन पार्ट कि सब्स्टिट्यूशन के साथ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो एक चीज आपको बता देता हूँ, आप अंदर वाले पार्ट को आप टी भी लेट कर सकते हो। ऑलराइट, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी ले लो। ऑलराइट, इसका डिफरेंशिएशन करो विच इज गोइंग टू बी ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स मेरे पास प्रेजेंट था तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। इसको रिप्लेस कर दिया तो दिस इज गोइंग टू बी वन अपॉन ए अंडर रूट ऑफ टी डी टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर वन अपॉन टू dt, and what do I have, 1 upon 2 plus 1, that is going to be 3 upon 2, that is going to be a टी की पावर 3 अपॉन 2 एंड 3 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 2 से। ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू बी 2 अपॉन 3a टी की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन से करना होगा तो दिस कैन बी इजिली डन इन दिस वे। ऑल राइट, एज सुन एज यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस विद दिस पार्ट, तो आप इसको डायरेक्टली टी लोगे ही नहीं, बिकॉज आपको पता है कि 1/a के साथ आपको डायरेक्टली डिवाइड करना है, एंड यू कैन मूव सिंपली मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑल राइट बच्चा, the next question that we are going to have on the screen is going to be question number 7. This is going to be question number 7, and question number 7 थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। I'll just put a star mark over here. This is x अंडर रूट में x प्लस टू डी एक्स। सर अब इसके अंदर तो ऐसा वाला पार्ट है, व्हाट इज गोइंग टू बी द अप्रोच फॉर ऑल ऑफ अस। इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोच आपकी एक चीज की आएगी कि आपको अंडर रूट वाली टर्म को एक सिंगल टर्म लेना है सो दैट पावर 1/2 हो जाए एंड यू कैन सिंपली इंटीग्रेट इट। बट बाहर एक x प्रेजेंट है और x प्लस टू का अगर डिफ्रेंसिएशन करूँ तो x नहीं आता है। ठीक है, तो देखते हैं करना क्या है। लेट अस कंसिडर दैट x प्लस टू इज इक्वल टू टी, तो व्हाट डू आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज गोइंग टू बी dx इज इक्वल टू dt। बट मैंने dx और dt को तो रिप्लेस कर दिया, ये वाला भी मैंने रिप्लेस कर दिया, बट हाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस x। सो व्हाट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू इज कि इस वाले टू को आप इस तरफ ले जाओ, तो x क्या हो जाएगा, x इज गोइंग टू बी, आई विल जस्ट राइट इट विद अनदर पेन, x is going to be t minus 2. Just replace this and replace this in this expression, and what you are going to have is another look of the question. All right, तो ये हो जाएगा मेरे पास t minus 2, और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। अब इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इफ यू आर गोइंग टू रिमेंबर एक्सरसाइज 7.1, वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर, एंड अगर आपको 7.1 यू हैव नॉट डन, यू विल फाइंड सम लिंक हियर एंड देयर, तो आप उस पे जाके वीडियो को वो देखो, देन यू कैन कम टू दिस एक्सरसाइज, बिकॉज सारे क्वेश्चंस एट लास्ट विल बी सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड। ऑल राइट, तो हम इसको अलग अलग डिफरेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज टी की पावर 1 प्लस 1/2 minus 2 t की power 1/2 into dt. Just simplify it further. This is going to be t की power 3/2 dt minus 2 integration of t की power 1/2 dt. अलग अलग इसे इंटीग्रेट कर दो, 3 की पावर 2 t की पावर 3/2 इज प्लस 1 करोगे तो 5/2 हो जाएगा, t की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस ऑफ 2, ये इसमें प्लस 1 करो तो दिस इज गोइंग टू बी t की पावर 3/2, and this is 3 multiplied by 2 here. तो what I am going to have is plus c, and t को replace कर दो तो this is 2/5, t was x plus 2, 5/2 minus 4/3 t की पावर, it is not 3, मैंने इसको यहाँ से replace कर दिया, if you are going to see it over here, तो this is going to be x plus 2 की power 3/2 plus c. I hope this question is very much clear to each and every one of you. uh, सही है, समझ आ गया। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इजी पार्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। देखो क्लास अभी तक सारे क्वेश्चन ना इजी आ रहे हैं, एंड दिस एक्सरसाइज इज बेसिकली वेरी इजी, एंड अगर हम लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाएंगे साथ में, तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज का ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है, बट दिस चैप्टर नीड्स व्हाट, दिस चैप्टर नीड्स कंटिन्यूअस रिवीजन एंड डूइंग ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x² डी एक्स। हाउ डू आई डू दिस क्वेश्चन। बच्चा लेट अस पुट अंदर वाला पार्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अंडर रूट वाले पार्ट को आप कोशिश करो कि एक सिंगल टर्म में ले जाओ, एंड इसके अंदर 1 प्लस 2x² दो दो टर्म्स आ रही हैं,
So what do I have? Let us consider that 1 plus 2x square is equal to t. Differentiate कर दो, that is going to be 4x dx is equal to dt. Whatever I need, I am going to just take it on the left hand side, rest of the things to be transferred on the right hand side. I hope this thing is clear to each and every one of you. That is going to be x dx is equal to dt upon 4. Just यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एंड वी आर रेडी टू गो. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4. x क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से हट जाएगा 1 dx, ये हो जाएगा dt एंड दिस इज गोइंग टू बी t की पावर 1 अपॉन 2 dt. सिंपली इंटीग्रेटेड. अगेन 7.1 का क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 4 t की पावर 3 अपॉन 2, 3 एंड 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड प्लस c. एंड इफ यू आर गोइंग टू लुक ओवर हेयर तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा एंड 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी 6. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 6 एंड t को रिप्लेस कर दो. दैट इज गोइंग टू बी 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस c. आई होप दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. पावर 3 अपॉन 2 नहीं भूलनी है इसमें. ऑल राइट. So always and always recheck your answer whenever you are going to answer it in the examination. All right. Now we are going to move with another question, that is going to be question number 9. All right. Moving on to question number 9. Question number 9 क्या कह रहा है मेरे पास? इंटीग्रेट 4x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स. थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा सा हो गया एंड लेट्स हैव अ लुक कि एक्सप्रेशन हमें क्या कहता है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्सप्रेशन वी आर जस्ट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट आवर टर्म्स. ऑल राइट. तो मैंने क्या बोला था बच्चों कि अंडर रूट वाले टर्म्स को व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट सिंपली टेक इट टू वन सिंगल टर्म. लेट अस कंसिडर दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी. Differentiating both the sides, this is going to be give us 2x plus 1 dx is equal to dt. बच्चा मेरे पास ये आ गया और यहाँ पे अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, दिस इज गोइंग टू गिव मी द सेम पार्ट. तो मैंने इसे किया 2 बाहर ले लिया, दैट इज गोइंग टू 2x प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. अब देखो सेम वाली टर्म आ गई, तो इस वाले टर्म को जस्ट सिंपली इसके साथ रिप्लेस कर दो. दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस वाला पार्ट इज गोइंग टू बी dt और ये हो जाएगा t की पावर 1 अपॉन 2 एंड dt integrated. What we am going to get, that is going to be 2 t की पावर 3 upon 2 divided by 3 multiplied by 2 once again and plus c. तो ये हो जाएगा 4 upon 3. t was x square plus x plus 1 की पावर 3 upon 2 plus c. I hope this is the final answer in front of us. All right, this question was very easy. And class, as soon as I'm going to say this question is very easy, class please make sure that कि हमारा temporary mind ना हर क्वेश्चन को इजी टर्म्स पे ले रहा है. एंड हाउ एवर दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी. द कंडीशन इज वी हैव टू बी वेरी मच अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज कंसेप्ट. ऑल राइट. अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 10. एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज गोइंग टू बी सेइंग दैट कि सर ये वाले को सॉल्व करके दिखा दो तो मजा आ जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स. हाउ डू आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? ठीक है. अब कर लेते हैं कि जब मेरे पास ये वाला पार्ट आता है तो डू यू रिमेम्बर एक्सरसाइज 7.1 वंस अगेन कि करना क्या था सर. इसके अंदर से मैंने अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लिया था, तो मेरे पास कुछ ना कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आ गई थी. एंड हाउ डू आई डू इट? मैंने इसके अंदर क्या लिया, 1 अपॉन ये अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी डी एक्स फॉर एस. अब इसके अंदर मैं क्या कर लूँ, ये नीचे वाला ब्रैकेट को लेट अस कंसिडर टू बी टी अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी. जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. जो जो चीज मुझे चाहिए आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द राइट हैंड साइड. वेरी गुड एवरीवन. दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी. तो इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दो, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 1 अपॉन टी एंड दिस इज गोइंग टू बी डी टी. ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड. ऑल राइट, आगे चलते हैं. वॉट दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू से टू ऑल ऑफ अस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करना है. एंड हाउ डू आई डू द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी? एंड 1 अपॉन टी को इंटीग्रेशन क्या करना होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी लॉग. तो दिस इज गोइंग टू बी 2 लॉग टी प्लस सी और टी की वैल्यू जस्ट पुट ऑन कर दो, दैट इज गोइंग टू बी 2 लॉग ऑफ मॉड के अंदर अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी. आई होप दिस इज द आंसर. वंस अगेन, clear? Clear to each and every one of you?
बच्चा सी, दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इजी कंसिडरिंग दैट आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करते चले जाओ। सी हमारी स्पीड बहुत अच्छी खासी लेवल पे आ चुकी है एंड अभी जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी सेम अ रेपिटेटिव काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। लेट अस कंसिडर करने वाला दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को अगर आप देख के समझ गए कि करना कैसे है, then please give a thumbs up and a star and a chocolate and any treat that you want to give it to you, because आप थोड़ा समझ गए होगे कि करना कैसे। that is going to be x upon under root of x plus 4 dx। ऑल राइट सर, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करें, अब तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट तो बच्चा मैं ऊपर वाले पे देखो, नीचे वाला ये टर्म था, अगर मैं इसे t कंसिडर करूँ तो अगर ऐसे करूंगा वैसे करूंगा तो हो तो जाएगा। But can I think in another direction? That is x plus 4 minus 4 divided by under root of x plus 4 dx। अलग अलग टर्म्स में सेपरेट कर दूंगा। That is going to be x plus 4 divided by under root of x plus 4 dx minus 4 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर x plus 4 dx। राइट, अब देखो दो अलग अलग पार्ट में हो गए एंड इस वाले पार्ट को अगर मैं t कंसिडर कर लूं बच्चा, अब मैं ना इस वाले पार्ट का आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करके दिखा रहा, बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन यू डोंट हैव टू डू अ सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस, बिकॉज ये एक मेरे लिए टर्म t ही है। डिफरेंशिएशन भी dx इज इक्वल टू dt आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। ऑल राइट, दैट इज गोइंग टू गिव मी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ इस वाले पार्ट को अगर आपको लिखना है तो ये लिख सकते हो x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 dx। अगर हम इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे तो दैट इज गोइंग टू गिव मी, ये हो जाएगा मेरे पास पावर 3/2, दैट इज गोइंग टू बी x प्लस 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। माइनस ऑफ 4 बाहर था तो ये दिस इज 4, इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो 1/2 आ जाएगा। तो x प्लस 4 की पावर 1/2 एंड दिस इज 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर हेयर प्लस c। अगर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म, दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। आ गया क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करना था, लेकिन आपने इंटरनली अपना दिमाग लगाया कि सब्स्टिट्यूशंस कैसे करना है। ऑलराइट, आपने इंटरनली क्या सोचा कि सर मैं ये मेरा एक टर्म टी है, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू dt ही आ रहा है, व्हाई डू आई नीड टू शो इट। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी एंड इन योर एग्जामिनेशन यू कैन डू द क्वेश्चन लाइक this as well। All right, I'll just switch to my pen and I'll just erase some of the screen। This was question number 11 for all of us। अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो रहा है इस क्वेश्चन का एंड क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग दैट कि सर इस वाले क्वेश्चन में व्हाट वी हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ वेरी इजी पार्ट एंड इट इज आल्सो गोइंग टू से दैट x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx। ऑल राइट, वेन एवर आई एम हैविंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, इस अंदर वाले टर्म को क्या लेट करना है t एंड जस्ट लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव, क्या मेरे पास बाहर कुछ आ सकता है या नहीं। Just before doing that, I'll just put up my brain and I just write this situation as integration of x cube minus 1 की power 1/3। x की power 5 can be further divided into x cube and x square dx। ऑल राइट, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। लेट अस कंसिडर दैट कि मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने ले लिया t, तो दैट इज गोइंग टू बी 3x² dx इज इक्वल टू dt। जो चीज मुझे नहीं चाहिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड, आई एम जस्ट गोइंग टू एलिमिनेट इट इन फ्रंट ऑफ मी। दैट इज गोइंग टू x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। ऑल राइट, ये जब क्वेश्चन मेरे पास आया तो आई कैन जस्ट राइट इट 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, t की पावर 1/3। एक्स क्यूब को कैसे लिख सकता हूँ, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ यू ऑल हैव रिमेम्बर्ड, तो इस वाले पार्ट को मैंने कैसे किया था, दैट इज गोइंग टू बी एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस 1। मैं इसका -1 उस तरफ ले गया, दैट वाज टी प्लस 1। तो सिंपली आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट एज टी प्लस 1, और ये वाला पार्ट तो डायरेक्टली इसके साथ स्विच हो गया, दैट इज गोइंग टू गिव अस डी टी। ऑल राइट, द नेक्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी 1/t, और ये हो जाएगा t की पावर 1/3 प्लस 1, दैट इज गोइंग टू गिव अस व्हाट, जल्दी से बता दो बच्चा, दैट इज गोइंग टू गिव अस t की पावर व्हाट, t की पावर 4/3। तो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 4/3
प्लस टी की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय डी टी। एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में दैट इज हम इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4/3 डी टी प्लस 1/3 इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 1/3 डी टी। एंड एज सुन एज वी आर गोइंग टू डू इट, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 1/3 टी की पावर 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 7, यहाँ पे इसको 3 से कर देते हैं, प्लस 1/3 टी की पावर 1/3 प्लस 1 क्या होता है, टी की पावर 4/3, एंड यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 3 प्लस सी। जस्ट एलिमिनेट सम ऑफ द टर्म्स, 3 से 3 कट गया एंड 3 से 3 कट गया, दैट इज गोइंग टू गिव अस टी की पावर 7/3/7 प्लस टी की पावर 4/3/4 प्लस सी। ऑल राइट, एज सोन एज आई हैव दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस, तो ये क्वेश्चन आ गया। आई जस्ट गोइंग टू सिंपली रिप्लेस इट विथ सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने शुरू में कंसिडर कर रखे थे। तो टी की पावर 7/3 क्या था मेरे पास, तो एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3/7 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3/4 plus C. All right, I hope this question is very much clear in front of you, and this is how we are supposed to do this question. All right, question number 12 भी हो गया, बहुत easily हो गया, and we just hardly have to do any kind of efforts in this. बट ये वाला क्वेश्चन आप इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसिडर कर सकते हो, मैं इस पे 3 स्टार लगा देता हूँ, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू थिंक इन अनदर डायरेक्शन कि x की पावर 5 को भी मुझे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। हाउ आई हैव डन इज कि मैंने x की पावर 5 को यहाँ पे x क्यूब और x स्क्वायर पे कंसिडर, x क्यूब बिकॉज ये डायरेक्टली यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव था, d बाई डी एक्स था। क्लियर? ऑल राइट बच्चा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास क्या कहता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x क्यूब का भी क्यूब एंड dx। बच्चा, जो अंदर ब्रैकेट में टर्म है उसकी पावर कुछ और है, तब मैं उसी चीज को मैं एक बार t कंसिडर कर लेता हूँ, सो दैट इट इज वेरी इजी फॉर मी टू डू द पार्ट। लेट अस कंसिडर दैट 2 plus 3x cube is equal to t. Differentiating both the terms, that is 3 3 is a 9 x square dx is equal to dt. अब मुझे क्या जरूरत था, 9 की तो जरूरत ही नहीं थी, तो वॉट एवर आई नीड आई जस्ट टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द राइट हैंड साइड। दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/9 डी टी। जस्ट इसको रिप्लेस कर दो, दैट इज गोइंग टू बी 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म क्या थी मेरे पास, t की पावर 3। एंड जब मैं इसको करूंगा इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गोइंग टू बी गिविंग मी 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3 dt, एंड -3 प्लस 1 होता है -2 डिवाइडेड बाय -2, दैट इज गोइंग टू गिव मी -1/9 t की पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय -2 प्लस c। एंड द आंसर विच आई एम गोइंग टू हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी इज गोइंग टू बी -1/18, और इसको जस्ट स्विच ऑन कर दो एंड मैं नीचे टर्म ले आऊंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर प्लस सी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आपने यहाँ तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो बच्चा प्लीज टैप ऑन योर बैक दैट यू आर वेरी गुड गोइंग इन योर कंसेप्चुअल नॉलेज। एंड थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एंड अभी तक तो हमें बहुत कम ही टाइम हुआ है, एंड इट्स हार्डली 29 मिनट्स, एंड हमने बहुत अच्छा सब कुछ कर लिया है। तो लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि सर ये वाला क्वेश्चन हमने कौन सा किया था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। सर व्हाट क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की पावर m dx। बच्चा, डू यू स्टिल रिमेम्बर दैट कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 या क्या था, एक क्वेश्चन ऐसा था x प्लस एक्स लॉग x, तो इसके अंदर 1/x हमने कॉमन लिया था, 1 प्लस लॉग x कर लिया था, एंड इसको हमने t कंसिडर करके वी हैव डन इट। एज सून एज आई एम गोइंग टू सी एनी लॉग क्वेश्चन, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सर्च फॉर 1/x। अगर ये है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, नो नीड टू थिंक इन अनदर डायरेक्शन। ऑल राइट, ये वाला जस्ट मैंने आपको हिंट के लिए दिया था कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस पार्ट्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू बच्चा, वी आर गोइंग टू जस्ट लेट log x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt, जस्ट सिंपली रिप्लेस इट, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t की पावर m।
All right, so this is going to be integration of t की power minus m dt, and this is going to give me t की power minus m plus 1 divided by minus m plus 1 plus c. t को डायरेक्टली रिप्लेस कर दो, दैट इज गोइंग टू गिव मी log of x की पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस m प्लस 1 प्लस c. अगर आपको इतना समझ आ गया है तो इट इज़ वेल एंड गुड. आगे चलते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी तक तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ रहे हैं, एंड आई मस्ट से दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट. ठीक है, अगर सॉल्व नहीं भी हो रहे हैं तो इट्स नॉट एन इशू, घबराना मत अभी, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड हियर इन दीज एक्सरसाइजेस, एंड आगे आते आते वी आर गोइंग टू बी मेट मास्टर ऑफ दैट इंटीग्रेशन. Okay, question number 15 is going to say that integration of x divided by 9 minus 4x square dx. बच्चा, अगर मैं नीचे वाली टर्म को मैं t लेट कर लूंगा तो मेरे पास x के फॉर्म में डिफरेंशिएशन आ जाएगा. ऑल राइट, तो व्हाट आई गोइंग टू डू इट, दैट इज गोइंग टू बी लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t. इसे डिफरेंशिएट करो, दैट इज गोइंग टू बी माइनस 8 x dx is equal to dt. Whatever things I need, I take it on the left hand side, rest of the things take it on the right hand side. And what I'm going to get is x dx is equal to minus dt upon 8. तो इसको क्या करो, माइनस 1/8 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय t. ऑल राइट, एंड इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग के अंदर दिस इज माइनस 1/8 लॉग ऑफ t प्लस सी, एंड t को जस्ट पुट कर दो, दिस इज गोइंग टू बी माइनस 1/8 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी. आई होप दिस इज द आंसर. अगर आपको थोड़ा सा और कैरी फॉरवर्ड करना है विद दिस क्वेश्चन, तो अगर माइनस का साइन अगर आप ले जाओगे बाहर तो ये लॉग के अंदर 1 में हो जाएगा. आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होगी. इफ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू दिस प्रॉपर्टी इन फ्रंट ऑफ यू फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, लेट्स हैव इट. ये हो जाएगा माइनस ए लॉग बी. जब ये इस तरीके से होता है तो ये हो जाता है, पावर इसके ऊपर चली जाती है, दैट इज गोइंग टू बी ए लॉग बी की पावर माइनस 1. और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, ए लॉग 1/b. सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी व्हाट आई कैन जस्ट से इट कि ये वाला क्वेश्चन कैन बी इन अनदर स्टेप, कैन बी रिटन लाइक 1/8 log of 1/9 minus 4x square plus c. आई होप ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी आगे चलते चलते, बिकॉज मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, बेसिक्स कंसेप्ट्स आर देयर एंड मैथमेटिक्स इज वेरी बेसिक. आई जस्ट वांटेड टू से टू ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग दैट कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ऑलराइट, ऑलराइट क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू अनदर क्वेश्चन. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. Question number 16 is saying that की integral of e की power 2x plus 3 dx. ऑल राइट, इस वाले पार्ट में क्या करना है, इस वाले क्या पार्ट के अंदर जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसको टी ले लो. हाउ एवर दिस क्वेश्चन कैन बी मेंटली डन इनसाइड योर माइंड, एंड देख लेते हैं क्या करना है. दैट इज गोइंग टू बी, लेट अस कंसिडर दैट 2x plus 3 is equal to t. तो ये आ जाएगा 2 dx is equal to dt. वॉट एवर थिंग आई नीड take it on the left hand side, rest of the taken to be on the right hand side. तो ये हो जाएगा dx is equal to 1/2 dt. सिंपली रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल e की पावर t dt. इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट इज गोइंग टू 1 e की पावर t प्लस c. t को जस्ट रिप्लेस कर दो, दैट इज गोइंग टू बी गिविंग अस e की पावर 2x plus 3 and plus c. However, I just wanted to say that this question can be done in another form. Please see it on the right hand side. I will be using green color. अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहते हो तो अनदर पार्ट, अनदर मेथड, एक अनदर मेथड भी नहीं है, ये एक अनदर वे है. जब जब भी मैं e की पावर t को इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, e की पावर 2x प्लस 3, और इसके जो डिफ्रेंसिएशन उसको मैं कर देता हूँ डिवाइड प्लस c. तो यही वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली ये डायरेक्टली ही आ जाएगा. बट द मैकेनिज्म विच इज बीइंग फॉलोड ओवर हेयर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज दिस. ठीक है, मैकेनिज्म ये, और हम डायरेक्टली इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं. ऑल राइट, आई होप ये सब चीज़ें आपको पता होगी अभी तक. क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी पता चल गई. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 मेरे को क्या कहता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx. x स्क्वायर को इसके अंदर अगर आप t ले लोगे तो इट इज गोइंग टू मेक दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल. Let us consider that x square is equal to t. So this is going to give us 2x dx is equal to
dt, और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 dt, बिकॉज जो चीजें मुझे चाहिए थे टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी टेकन ऑन द राइट हैंड साइड। वेरी गुड बच्चा, ऑल राइट। बच्चा प्लीज बोल बोल के पढ़ने के लिए ना कभी भी शर्माओ मत, जस्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी थिंकिंग दैट कि सर इतने तेज तेज क्यों बोल रहे हैं, ऑल राइट। तो कभी शर्माना नहीं है मैथमेटिक्स से, बिकॉज जैसे ही शर्मा जाओगे तो बेटा फिर क्या करोगे, ऑल राइट। ऑल राइट, दिस थिंग इज गोइंग टू गिव अस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई ई की पावर टी। और जब आप ई की पावर टी आप ले लोगे, जब ऊपर चला जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ टी, तो जब उसको करेंगे तो बहुत बेसिक सा पार्ट है, कर लेते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस टी डी टी, एंड ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन। अब हम यही वाला जो पार्ट हमने पिछली बार करा था, हम उसको डायरेक्टली पुट ऑन करेंगे। तो ई की पावर माइनस टी का टी हो जाएगा, उसके डिफरेंशिएशन के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सी, तो ये हो जाएगा -1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगले वाले क्वेश्चन में तो बच्चा बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू इन्वॉल्व सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया है अभी तक तो बच्चा, आई जस्ट राइट इट डाउन हेयर। मैं एक बार ना स्क्रीन के साइड में एक आइडेंटिटीज का पूरा फॉर्मूला जो मैंने बनाया हुआ था, एक वीडियो, आई जस्ट पुट इट हेयर इन क्वेश्चन नंबर 18। एज सुन एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट हम लोग डाल देंगे, एंड आप वीडियो पे क्लिक करके आप उस वीडियो को दोबारा से रिकैप्चुलेट कर सकते हो। इट इज बेसिकली इन्वॉल्विंग ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 18 को हम जब चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक। बोल रहे इंटीग्रल ऑफ ई की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओ माई गॉड, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बिकॉज मुझे पता है सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऑल राइट, कैसे करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स x को मैंने ले लिया t, और इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, वी जस्ट हैव टू सिंपली रिप्लेस इट, और आई कैन जस्ट से दैट वी जस्ट हैव टू सिंपली सब्स्टिट्यूट इट। ऑल राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो कर रहे हैं। ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू बी गिविंग अस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो जाएगा टी, एंड ई की पावर टी ये क्या हो जाता है, तो ई की पावर टी प्लस सी, और टी को रिप्लेस कर दो tan इनवर्स के ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये रहा मेरा आंसर इन फ्रंट ऑफ अस। ऑल राइट बच्चा, अगला वाला क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकता हूँ, कंसिडरिंग द पॉइंट कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करना है तो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 19। कोई कोई बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं सर इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दिस -1 डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x प्लस 1। All right, how do I do this question in front of you? Class, moving on to the next question. The next question that we have is very good kind of question, because ये वाले क्वेश्चन बेसिकली आ जाते हैं जस्ट टू चेक दैट आवर कंसेप्शन नॉलेज इज वर्किंग वेरी वेल। ऑल राइट, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग देखोगे कि सर इस वाले पार्ट को अगर आप टी ले लो तो बट इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है, बट एज सुन एज वी आर गोइंग टू हैव दीज क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमें इस क्वेश्चंस में करना क्या है कि इस वाले क्वेश्चंस में ना हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, एंड दीज ट्रिक्स आर कि जब ई की पावर एक्स और ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो इट इन्वॉल्व सम फंक्शनैलिटीज। ऑल राइट, और वो वाली चीजें क्या है क्लास, कैन आई जस्ट टेक ई की पावर एक्स टू बी कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स -1 ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले पार्ट से ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स डी एक्स। ऑल राइट, ये और ये कट जाएंगे, एंड इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई कैन जस्ट राइट ई की पावर एक्स माइनस ये वाला पार्ट ई की पावर माइनस एक्स होता है, क्योंकि मैं इसे ऊपर जब ले जाऊंगा तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ऑल राइट, ई की पावर माइनस एक्स। जब मैं इस नीचे वाले पार्ट को टी एज्यूम कर लूंगा तो मेरे पास ऊपर वाला पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लेट अस कंसिडर दैट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स रहेगा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
तो जब ये वाला पार्ट आ गया, जस्ट सिंपली रिप्लेस इट एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, dt अपॉन t, एंड दिस इज गोइंग टू गिव इज log ऑफ क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, ये आएगा मॉड के अंदर. I hope this question is clear to each and every one of you, and this is how this is question is supposed to be done. Again question number 20 के अंदर चले जाते हैं, and question number 20 क्या कहता है, let's have a look. Question number 20 मेरे को कहता है कि integration of e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x divided by e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx. अगर आप लोग बहुत ध्यान से देख रहे होगे दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व वन थिंग कि इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म इज ऑलरेडी प्रेजेंट अबव. तो ये क्या वाला क्वेश्चन हमारा पिछले बार की तरह हो जाएगा, बट इन दिस क्वेश्चन वी डोंट हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ ब्रेन बिकॉज पक्का पकाया सिस्टम हमें दे रखा है. ऑलराइट, वी जस्ट हैव टू अप्लाई दिस एंड वी आर रेडी टू गो विद द आंसर. एंड let us consider that e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को मैंने t ले लिया, तो जब इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस 2 e की पावर माइनस 2x dx is equal to dt. What all things that I need will be taken on the left hand side, rest of the things to be taken on the right hand side. बच्चा, अगर मैं अभी इसमें 1/2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये ऊपर वाली टर्म मुझ पर एज इट इज आ जाएगी. तो ये हो गया, मैंने 2 यहाँ पे कॉमन लिया और 2 राइट हैंड साइड में ले गया, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt. जस्ट रिप्लेस कर दो एंड वी आर रेडी टू गो. दिस इज गोइंग टू बी 1/2 dt अपॉन t, एंड इसको करोगे तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/t log ऑफ t को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, दैट इज गोइंग टू बी e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c. Is this thing clear to each and every one of you? And this is how this question is supposed to be done. And बहुत easy से questions हैं, and अब तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं, because आप सब इस advanced level of questions के अंदर आ चुके हो, और एक्सरसाइज 7.1 तो अब बहुत अच्छे से आने लग गई होगी, बिकॉज एवरी टाइम वी आर इन्वॉल्विंग एक्सरसाइज 7.1. ऑलराइट, व्हाई आई एम सेइंग एक्सरसाइज 7.1, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज है, अप्रोक्सीमेटली 10 एक्सरसाइजेज आर देयर, प्लस वन मिसलेनियस इज ऑल्सो देयर. मिसलेनियस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट मिसलेनियस तभी आप लोग कर पाओगे जब आप ये सारी एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से करोगे. दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस टू यू ऑल. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx. सर इस वाले क्वेश्चन को ना अब मुझे बता दो कि सर ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा था कि जब पिछले वाली एक्सरसाइज में tan स्क्वायर x था, तो आई वाज जस्ट ओनली एंड ओनली ब्रेकिंग दैट आइडेंटिटी इनटू sec स्क्वायर x माइनस 1. तो इस वाले में वही कर देते हैं सर. Why to take any load? तो this is going to be this is going to be sec square 2x minus 3 minus of 1 dx. Simply break it into two different terms, और 2x minus 3 को t ले लेना, and we will be able to solve it. This is going to be integration of sec square 2x minus 3 dx minus integration of 1 dx. और ये वाला पार्ट हमारे क्या मिल जाएगा, जल्दी से बता दो. दैट इज गोइंग टू गिव अस 1/2 बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर होता है tan x, दैट इज गोइंग टू बी tan 2x माइनस 3, और इसके डिफरेंशिएशन से आप इसे डिवाइड कर दोगे, माइनस ऑफ x प्लस सी. इजीली आ गया आपके सामने ये क्वेश्चन. कैसे हुआ क्लास? अभी से पहले तो हम हर एक चीज को यहाँ पे लेट करके लिख रहे थे सर. लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो 2 dx इज इक्वल टू डी टी. तो जो चीज हमें चाहिए था डी टी अपॉन 2 कर दिया, वो डायरेक्टली चीज अब मेरे को इतनी आ गई है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ. ऑलराइट, एंड दिस इज द वे. मुझे ये सारी चीजें चाहिए थी आपके थ्रू, कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस अभी तक खुद करे हैं तो यू विल बी इजीली एबल टू नो कि सर करना क्या है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर आप आओगे तो ये इसी का थोड़ा सा एक एक्सटेंशन ऑफ द पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx. ऑलराइट, तो सेक स्क्वायर का क्या होता है मेरे पास, tan स्क्वायर. मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, ठीक है, बिकॉज आई विल कंसिडर कि दोनों तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके दोनों तरीके बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. ब्रेन में भी क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए. ऑलराइट, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan ऑफ 7 माइनस 4x, और इस वाले से डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो, दैट इज गोइंग टू बी -4.
जस्ट इस वाले पार्ट को ना हम येलो कलर कर देते बिकॉज हम सारे के सारे येलो कलर से ही कर रहे थे। आंसर्स वॉज विद येलो कलर। इस चीज में थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ बिकॉज इसमें मुझे मजा आता है। ऑलराइट, प्लस सी, दिस थिंग इज क्लियर। मेरे पास जब ये क्वेश्चन आ गया तो आंसर इज गोइंग टू बी दिस ओनली। आ गया आंसर, एक स्टेप के अंदर आ गया। अदरवाइज अगर आपको इसे लेट करके करना होता तो लेट 7 - 4x इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा -4 dx इज इक्वल टू डी टी, एंड dx इज इक्वल टू -1/4 dt। जब आप इसको करोगे तो यह बाहर ले लेना, ये हो जाएगा मेरे पास tan ऑफ 7 - 4x, और ये हो जाएगा -1/4 से डिवाइड प्लस सी। तो सी सब्स्टिट्यूशन और ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा इजी है। ऊपर वाले टर्म के साथ सीधा डिफरेंशिएशन से कर दो डिवाइड, एंड वी आर रेडी टू गो। अगेन वी आर गोइंग टू मूव टू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, एंड ये वाला क्वेश्चन मुझे कह रहा है बहुत इजी है, देखते रहना। एंड अलोंग विद दिस आपके ना थोड़ी प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो जाएंगी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - x² एंड dx। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - x²। तो मैंने क्या किया, लेट अस कंसिडर दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² dx इज इक्वल टू dt। जस्ट सिंपली रिप्लेस इट, दैट इज गोइंग टू बी t dt। एंड ये हो जाएगा t² अपॉन 2 प्लस c, t को सीधा रिप्लेस कर दो, दैट इज गोइंग टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। बहुत इजीली हो रहे हैं, एंड आई मस्ट से दैट कि इजीली होने वाले क्वेश्चंस हैं भी ये। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर 24 इज गोइंग टू से दैट, क्वेश्चन नंबर 24 मुझे ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x dx। एक चीज तो मुझे पता चल रही है, 2 और 3 कॉमन है, मतलब 2 कॉमन आ रहा है बाहर से। तो व्हाई नॉट टू टेक दैट 2 कॉमन इटसेल्फ पहले से ही, और कॉस और साइन के बीच में देख लेते कि चल क्या रहा है। ऑल राइट, तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज कि मैंने इसके अंदर से 1/2 कॉमन ही ले लिया बाहर। तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से कॉमन लिया तो दिस बिकम्स 3 cos x, और ये क्या हो जाएगा +2 sin x dx। प्लस नीचे वाले पार्ट को आप क्या ले लोगे, नीचे वाले पार्ट को आप ले लो t, एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी, लेट अस कंसिडर दैट 3 cos x प्लस 2 sin x को ले लिया t। डिफरेंशिएट कर दो, cos x का होता है -3 sin x, और ये हो जाएगा 2 cos x dx इज इक्वल टू dt। इस वाले टर्म को डायरेक्टली आप ये चीज देख रहे हो कि ऊपर प्रेजेंट है, तो दिस इज गोइंग टू बी dt, एंड सिंपली रिप्लेस इट, यू विल गेट टू द आंसर। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t। तो दिस इज 1/2 log ऑफ t प्लस c, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू log ऑफ t, क्या था मेरे पास, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, और लगातार मैं इस क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इजी होते चले जा रहे हैं दैट आई कैन जस्ट कैन नॉट टेल यू। अभी तक हमारी वीडियो अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट के ऊपर जा रखी है, एंड जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, एंड दीज क्वेश्चन आई मस्ट से दैट दीज आर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, आपके कंसेप्ट ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज आई ऑलवेज यूज दिस एनसीईआरटी जस्ट बिकॉज ये हर एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करा देते हैं। उसके बाद वी कैन मूव टू अनदर books like R.D. Sharma and all these kind of books. Various books are there. I'm just not promoting any book. आप नेट पे भी क्वेश्चंस डालोगे तो you'll get a lot of questions regarding integration. All right. क्वेश्चन नंबर 25, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हो टू आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज। 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ऑल राइट, कि सर अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। क्लास जहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ ना, तो मैं इसे साइन और कॉस के अंदर ब्रेक करता हूँ, सर इस वाले में तो नहीं हो रहा है। तो सिंपली जस्ट डू वन थिंग, इसको हम एक अलग फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan एक्स का स्क्वायर dx। तो 1 प्लस tan एक्स को आप t ले लो, 1 माइनस tan एक्स को आप t ले लो, एंड बेसिकली आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट अस कंसिडर 1 माइनस
tan x को ले लिया t, और tan x का क्या होता है sec square x dx is equal to dt. Whatever thing I just wanted taken on the left hand side, rest of the thing to be transferred on the right hand side. This is going to be sec square x dx is equal to minus dt. रिप्लेस कर दो, दिस इज गोइंग टू बी माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 dt, और -2 + 1 होता है -1, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे पास 1/t+c, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड माइनस और t क्या ले रखा था मैंने 1/1 माइनस tan x plus c, and this is here the answer. All right, class, अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं. अगला वाला क्वेश्चन is again going to be very simple for each and every one of you. That is going to be question number 26. Question number 26 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ cos अंडर रूट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x dx. ऑल राइट, तो इस क्वेश्चन में व्हाट डू वी हैव टू डू इज कि सर कुछ ना कुछ तो करना था. इस पे अंडर रूट एक्स है, और जब भी अंडर रूट एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ 1/2 रूट एक्स आता है मेरे पास उसका डिफरेंशिएशन, और इसी तरीके से आई कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड विद दिस. तो लेट अस कंसिडर दैट अंडर रूट एक्स को ले लिया मैंने टी. जब मैंने अंडर रूट एक्स को मैंने जब टी ले लिया, तो इट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. 1/2 था, जो वट एवर आई वॉज नीडिंग, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी ट्रांसफर्ड ऑन टू राइट हैंड साइड. दिस इज गोइंग टू गिव मी 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt. जस्ट इसको रिप्लेस कर दो, एंड सर कैसे रिप्लेस करेंगे, ये देखो ये वाली टर्म ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है. ऑल राइट, तो व्हाट डू वी हैव टू डू, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt. तो cos का क्या होता है मेरे पास, जल्दी से बता दो, cos का क्या होता है मेरे पास, सर साइन होता है. दैट इज गोइंग टू बी 2 sin t प्लस c, और t को सीधा रिप्लेस कर दो, दैट इज 2 sin रूट x प्लस c, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन फ्रंट ऑफ अस. ऑल राइट, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, एंड अगले क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन 2x cos 2x dx. अंडर रूट के अंदर कुछ टर्म है, उसी को मुझे t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड क्या करना है क्या नहीं करना है, just let's have a look. And how do we have to proceed with these kind of questions, हमने आपको पहले ही बता दिया कि what do we have to do. all right, तो let us consider that sin 2x को मैंने ले लिया t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos of 2x, और इस वाले के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, dx is equal to dt. And whatever I need, take it on the left hand side, rest of the things to be transferred on the right hand side. Yes, very good. This is going to give me cos of 2x dx is equal to 1/2 dt, और ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt. और ये सब तो आपने करा ही हुआ है इन एक्सरसाइज 7.1, फिर से याद आ रही है मुझे. अगर आपने 7.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है, तो फिर से आप लिंक यहाँ पे देख लेना. एंड एक्सरसाइज 7.1 का लिंक मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, मैंने लिख लिया है यहाँ पे, एंड आई विल बी अटैचिंग इट. दिस इज गोइंग टू बी 1/2, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस c. देखो 2 से 2 कट गया, और ये हो जाएगा t मैंने क्या लिया था साइन 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, दिस वॉज 3. ऑल राइट, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत इजीली हो गया विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला वाला क्वेश्चन इज गोइंग टू से दैट कि सर देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 28, सी क्वेश्चन नंबर 28 इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन x dx. all right, as soon as I am going to have this question in front of me, what I have to do is कि इस वाले पार्ट को ना किस अलग अलग तरीके से ही सॉल्व करना है. आंसर अलग तरीका क्या है कि अंडर रूट के अंदर कुछ है, उसको मेरे को लेना था t. ऑल राइट, अंडर रूट के अंदर जब मैंने उसको t ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, यू विल हैव जस्ट हैव अ लुक. लेट अस कंसिडर दैट 1 प्लस साइन x को ले लेता हूँ t, तो ये मेरे पास आ जाएगा cos x dx is equal to dt, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे पास. दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t की पावर 1/2. ठीक है, t की पावर 1/2 जब ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt. इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट इज गोइंग टू गिव अस t की पावर 1/2
और 1/2 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू टी की पावर 1/2, तो ये क्या था मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स dx। ऑल राइट बच्चा, अगर जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो यू डोंट हैव टू वरी रिगार्डिंग दिस, बिकॉज जब भी हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ना तो उसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पार्ट मुझे बाहर दे रखा होगा। करके देख लेते हैं हाउ डू वी डू इट। तो लेट अस कंसिडर दैट log ऑफ साइन एक्स को मैंने ले लिया t। तो log साइन एक्स क्या होता है? 1 अपॉन, ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स के डिफरेंशिएशन से आप क्या कर दोगे? इसको मल्टीप्लाई, दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट? कॉट कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। जो सिंपली रिप्लेस करो, इस वाले पार्ट को टी ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, तो ये हो जाएगा टी की पावर 2/2 प्लस सी, और टी को आपने क्या लिया था? लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी एंड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। बस थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, आई थिंक 9 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, एंड अभी भी हम बहुत अच्छी खासी स्पीड पे हैं। एंड क्लास, ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी ऑलरेडी, बिकॉज इंटीग्रेशन चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके एक एक क्वेश्चन करना मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मुझे तो आपको कराने हैं एंड आई नो दीज क्वेश्चंस वेरी वेल, बट आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं बिकॉज कि आगे जाके ना यही क्वेश्चंस आपके किसी भी पार्ट के अंदर इंडल्ज हो जाएंगे। Alright, question number 30. And question number 30 is saying that integration of sin x divided by 1 plus cos x dx। ये वाला क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया था। लेट अस कंसिडर दैट 1 प्लस कॉस एक्स को ले लिया t, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जो चीज चाहिए टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी ट्रांसफर्ड ऑन द राइट हैंड साइड। दिस इज गोइंग टू गिव अस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी, एंड ये हो जाएगा इन माइनस ऑफ लॉग टी प्लस सी, और टी की जगह पुट कर दो, दिस इज गोइंग टू माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। और जब भी हमारे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इससे पहले, माइनस ऑफ लॉग ए वाली, तो लॉग 1 अपॉन ए हो जाता है, दैट इज गोइंग टू गिव अस लॉग ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन फ्रंट ऑफ अस। ऑल राइट, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्लास, अभी आपको समझ आ रहा होगा कि दैट दिस एक्सरसाइज इज कंसिडरेबली वेरी 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 इजी। 7.1 का पूरा पार्टीशन इसी के अंदर आ रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज यू विल बी नोइंग दैट कि सर बाकी सारे पार्ट ना यही आ रहे हैं। एंड अगर हमने ये क्वेश्चंस कर लिए बहुत अच्छे से, तो आगे वाली एक्सरसाइजेज आर सो सिंपल फॉर अस कि दैट वी कैन नॉट एज्यूम इट फर्दर। ऑलराइट, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज सेइंग टू अस दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ऑल राइट, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कैन आई कंसिडर दैट, लेट अस कंसिडर दैट 1 प्लस कॉस एक्स को ले लेते हैं टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जो चीज चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और बाकी सारी राइट हैंड साइड। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, दैट इज गोइंग टू गिव मी माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये वहां पे चला जाएगा। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज आप भी बहुत जल्दी जल्दी करोगे मेरे साथ। ऑल राइट, जस्ट पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन, सी द आंसर, मूव फॉरवर्ड, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज ये चैप्टर भी हमें बहुत जल्दी करना है। ऑल राइट, 7.1 अपलोड हो गई है, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज अपलोड हो गए हैं, 7.2 अभी जस्ट अपलोड हो जाएगी, एंड वी जस्ट हैव टू डू, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, आई एम जस्ट वर्किंग अलॉन्ग विथ यू सो दैट आप लोग बहुत ईजिली फ्री में पढ़ सको। एंड माई मेन एम इज टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी इजीली टू यू, ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, दिस इज गोइंग टू बी टी की पावर -2 डी टी, ये हो जाएगा +1, तो ये माइनस ऑफ टी की पावर -2 प्लस -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन टी प्लस सी। ऑल राइट, जैसे ही मेरे पास ये 1 अपॉन टी प्लस सी हो गया, टी की वैल्यू पुट कर दो, एंड टी वॉज 1/1 प्लस कॉस एक्स plus c, and this is going to be the answer in each in front of us. All right, the next question that we are going to have is going to be question number 32,
एंड लेट्स सी कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 32 इज सेइंग दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स. क्लास, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए डू यू रिमेम्बर दैट कि सर जब भी हमें कुछ समझना है तो हमें साइन और कॉस के बीच में रिप्लेस कर देंगे, और जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, जस्ट प्लीज सी अलोंग विथ मी. दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स. अगली वाले टर्म पे क्या हो जाएगा, साइन यहाँ चला जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. ऑल राइट, जब मेरे पास ये आया तो सर इसके अंदर कॉस एक्स को प्लस और कॉस एक्स को माइनस कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है. अगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता तो सर, क्योंकि अगर मैं इसको कुछ भी करूंगा तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी राइट नाउ. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज यू हैव टू जस्ट अप्लाई योर ब्रेन. ऑल राइट, मैं इसे 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ. दिस इज गोइंग टू गिव मी 1/2, एंड ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. कैन आई राइट इट एज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. मैं बताता हूँ व्हाई आई हैव जस्ट कंसिडर्ड दैट. 2 साइन एक्स तो ये रहा साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स. अगर हम इसमें प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स किया तो दोनों के दोनों सेम, तो हमारे पास सेम चीज आ गई. सर आपने ऐसा क्यों किया, प्लीज सी दैट कि ये वाला पोर्शन तो कट हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है, और ये वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus cos x divided by sin x plus cos x plus 1/2 integration of sin x minus cos x divided by sin x plus cos x dx. जब ऐसे मैंने ब्रेक किया तो ये बहुत इजी हो गया. दैट इज गोइंग टू बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये हो जाएगा dx, एंड प्लस 1/2, ये वाला आप t ले लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt. बहुत इजीली आपके सामने ये सारा क्वेश्चन आ गया है. एंड जस्ट कंसिडर दैट कि ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था ये हमने ऑलरेडी कर रखा है. दिस वाज ऑलरेडी डन एंड वी जस्ट डोंट हैव टू लुक फॉरवर्ड टू दिस पार्ट, बिकॉज जैसे ही आप इसको टी ले लोगे, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ आपको करना कैसे है ये वाला पार्ट. आई विल नॉट मूव इन अ शॉर्ट फॉर्म, बिकॉज फिर आप बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया. ठीक है. तो ये हो जाएगा, जब मैं नीचे वाले पार्ट को लूंगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ले लूंगा टी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का होता है कॉस एक्स. दिस इज कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. और ये वाला पार्ट जब आप माइनस में ले लोगे तो आपके पास माइनस साइन बाहर आ जाएगा, and we are easily able to do it. And the answer which we are going to give is, ये हो जाएगा 1/2 x, और माइनस साइन बाहर था तो ये हो जाएगा माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. इस वाले पार्ट को आप माइनस ले लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, और इस वाले क्वेश्चन को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर कर सकते हो. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 33 मेरे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 इज सेइंग दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx. क्लास, डू यू स्टिल रिमेम्बर कि अभी भी हमने जस्ट एक क्वेश्चन किया था, दैट इज 1 प्लस कॉट एक्स. तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, दीज टू क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली द सेम. एंड कुछ करना नहीं है, साइन और कॉस के अंदर डिवाइड करो, फिर 1/2 ये सब करते रहो, एंड यू विल गेट सम आंसर. तो देखते हैं, इसको फिर से कर देता हूँ. दैट इज 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स. दिस इज गोइंग टू गिव मी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स. अब 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो. दिस इज गोइंग टू बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स. अब इसको और ब्रेक करना है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus sin x plus cos x plus sin x divided by cos x minus sin x dx. As soon as we are going to just do it, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो गया मेरे पास सामने. तो इसको इस अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो. दिस इज गोइंग टू गिव मी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus sin x divided by cos x minus sin x dx plus 1/2 integration of
cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x dx। जब मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाएगा तो इसके बाद भी आगे के स्टेप बहुत ज़्यादा इजी है। उसको सब्स्टिट्यूट कर दो एंड आफ्टर डूइंग द सब्स्टिट्यूशन यू आर गोइंग टू सिंपली गेट वन अनदर आंसर दैट इज गोइंग टू बी, मैं आपको जल्दी से बता दूं, दैट इज 1/2। ये तो मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt। एंड अगर इसको और सॉल्व करूंगा तो ये तो 1/x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग टी जिसको मैंने कंसिडर किया था, दैट इज cos x minus sin x plus c, and this is the answer in front of us, and you may consider this question again very important for all of you, all right। तो ये वाले क्वेश्चंस मेरे पास कुछ इस प्रकार थे, एंड again we are going to move on to another question, and another question is saying that अभी तो हमें बहुत कम टाइम हुआ है, 1 घंटा 5 मिनट हुए हैं लगातार। आप सबकी जो स्टडी का पीरियड होता है वो कम से कम 3-3 4-4 घंटा जाना चाहिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, ऑलराइट क्लास। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x dx। अब ना आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करूंगा। लगातार 3 क्वेश्चन आए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है according to examination point of view as well and according to the concepts as well, all right। तो इस वाले क्वेश्चन को आप क्या करोगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से क्या करें। ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है आप इसको कुछ कर सकते हो, सोचा, जल्दी बताओ। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज मैं इस वाले पार्ट को ना cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड कर देता हूँ, मेरे पास कुछ आएगा। ठीक है, ताकि नीचे cos स्क्वायर हो जाए तो ऊपर चला जाए तो sec स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, tan x को मैं t ले लूंगा और बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज गोइंग टू गिव मी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x dx डिवाइडेड बाय sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x इंटू cos x अपॉन cos x। ये वाला पार्ट मैंने एक्स्ट्रा इसके अंदर ज्वाइन किया है बिकॉज देखो cos x और ये sin x हो जाएगा tan x, और ये cos x हो जाएगा cos x स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय ये दोनों मिलके हो जाएगा tan x, और ये वाला हो जाएगा cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय dx। तो दिस इज गोइंग टू बी, जब tan x ये यहाँ पे गया, जब नीचे चला जाएगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय tan x, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अगर मैं tan x को t ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा क्लास, जस्ट वी हैव टू डू द सिंपल सब्स्टिट्यूशन एंड लेट अस कंसिडर दैट कि tan x को मैंने ले लिया t, तो दिस इज गोइंग टू गिव मी sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। वट एवर आई नीड टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेस्ट ऑन द राइट हैंड साइड, ये वाली चीज मुझे चाहिए था, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/2 अपॉन टी dt। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जब ये 1/अंडर रूट ये आ जाएगा तो दिस इज गोइंग टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2 dt, एंड दिस इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, जल्दी से बताओ। दिस इज गोइंग टू गिव मी, मेरे पास आ जाएगा टी की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस सी, एंड जल्दी से पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ tan x प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर इन फ्रंट ऑफ अस, ऑल राइट। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो गया सर, क्या मैं कंसिडर कर सकता हूँ ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। जैसे ही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स आई थोड़ा सा आपको डाउट हुआ होगा, बट उसके बाद दोबारा से आप ना बैक ऑन ट्रैक हो गए होगे, ऑल राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं, जब भी लॉग का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है सर, जल्दी से बताओ। 1/x की तलाश करनी है, अगर 1/x है जल्दी से उसको आप पुट ऑन कर दो एंड यू कैन इजिली सब्स्टिट्यूट। क्वेश्चन नंबर 35 इज इन फ्रंट ऑफ अस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। ठीक है सर, बहुत इजी था, अब तो आप इसको छोड़ दो, अब ये तो हम खुद कर लेंगे। दैट इज 1/log x इज इक्वल टू टी, एंड log x इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। इस वाले को रिप्लेस करो तो दिस इज गोइंग टू बी टी स्क्वायर dt, एंड दिस इज गोइंग टू बी टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, एंड जिस इसको पुट कर दो दिस इज 1 प्लस log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। सर बहुत जल्दी से हो गया ये क्वेश्चन क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर ली थी, बट अगला वाला क्वेश्चन कैसे होगा सर, ये वाला क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके से है, एंड आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, एंड लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 36 एंड क्वेश्चन नंबर 36 इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन कैसे करूं? ये वाला क्वेश्चन तो अब कैसे होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप अलग अलग फॉर्म में ब्रेकअप कर लो। एंड हाउ डू वी ब्रेक दिस क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को पहले लिख लेता हूँ। दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और इस वाले पार्ट को कर लेता हूँ x प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। अभी तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास मैं फिर से इसको x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर एंड कैन आई राइट इट एज वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप लेट अस कंसिडर दैट x प्लस लॉग एक्स को ले लोगे t, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वन प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा था कि हाउ डू वी सब्स्टिट्यूटेड, बट एज सुन एज वी आर ऑन दिस पार्ट तो ये आ गया। कभी भी ऐसे वाले पार्ट आपके पास आ जाए तो दिस इज अ गोइंग टू बी गुड अप्रोच। तो लास्ट के हम जो 3 4 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। क्लास जैसे ही मेरे पास आ गया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको जस्ट डायरेक्टली रिप्लेस करो, ये हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। So this is going to be integration of t square dt, and this is going to give us t cube upon 3 plus c, और log हमने t को क्या ले रखा था, तो that is going to give us x plus log x की power 3 divided by 3 plus c, and this is going to be the answer in front of us. All right, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक 3 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर अगेन गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 37 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। ऑल राइट सर, इसको कैसे करें? नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अंदर वाले पार्ट को सिंपली टी ले लो ना। जो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, द पार्ट विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट सिंपली टेक इट एज टी। व्हाट इज द हार्म इन टेकिंग दैट? ऑल राइट, एक बार टी कंसिडर करके देखो एंड लेट्स हैव अ लुक कि इंटीग्रल्स क्या आ रहे हैं मेरे पास, डिफरेंशिएशन टर्म्स क्या आ रही है मेरे पास, एंड उसके हिसाब से सोचेंगे। ठीक है क्लास, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू लेट अस कंसिडर दैट tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को मैंने जब t लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये था, तो x की पावर 8। और इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4x³ dx इज इक्वल टू डी टी। जो जो चीज मुझे चाहिए थी, टेक इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू बी राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। 4 यहाँ पे था तो ये हो जाएगा 1/4 dt। सिंपली रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। ऑल राइट, साइन का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस, दिस इज गोइंग टू बी -1/4 कॉस टी प्लस सी, और टी मेरे पास क्या था, -1/4 कॉस ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा था, बट एज सुन एज वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द आइडेंटिटीज एंड ऑल, तो ये सारी आइडेंटिटीज और ये सब लगाने के बाद दिस क्वेश्चंस हैव टर्न आउट टू बी सो ब्यूटीफुल इन फ्रंट ऑफ अस कि हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑल राइट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड ये वाले जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, दीज आर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इसके एमसीक्यूज दे रखे हैं, बट आई विल जस्ट सिंपली फाइंड आउट द आंसर, एंड उस आंसर के बेसिस पे आप अपने एमसीक्यूज मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है मेरे पास, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग ई। हमेशा मैथमेटिक्स में जो लॉग ले रहे हैं उसका बेस ई ही होता है, बट इसने स्पेसिफाई कर दिया है, दैट इज गोइंग टू बी x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, ये इक्वल्स टू व्हाट कर रहा है। तो क्लास इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है विच इज दिस, मैं एक बार इसको ना टी कंसिडर करके देखता हूँ कि क्या ये मुझे क्या आंसर देता है। ऑल राइट, सो एज सुन एज आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट दिस थिंग टू बी टी, दैट इज एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू टी, तो इसको आप डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा 10x की पावर 9। ये वाला पार्ट तो हो गया। जो लॉग ई ए का क्या होता है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर x लॉग ई 10
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे होगे ये पूरा का पूरा एज इट इज ऊपर कॉपीड है, तो नीचे वाली टर्म टी हो जाएगी और ये वाला पार्ट ऐसे ही हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस पार्ट, एंड ये वाला पार्ट मुझे क्या दे देगा, जल्दी जल्दी से देखना, दिस इज गोइंग टू गिव मी इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस लॉग ऑफ क्या, टी प्लस सी, एंड टी की वैल्यू करते तो लॉग हो जाएगा मेरे पास क्या था, 10 एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स प्लस सी, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ये वाला आपका जो भी ऑप्शन होगा प्लीज मार्क इट। एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड लेट्स सी कि ये वाला क्वेश्चन आप कर पाते हो या नहीं। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बच्चा ऊपर देखो 1 है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जब भी हमारे पास ये सारी आइडेंटिटीज और ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो व्हाट डू वी हैव टू डू इन सच केसेस। बच्चा 1 वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो ऊपर 1 था मेरे पास प्रेजेंट, 1 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, ऑल राइट। जब मेरे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स होता है तो आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक सबको क्लियर है, right? Because I know that identity that sin square x plus cos square x is equal to 1। बिकॉज बच्चा ये सारी चीजें ना आप सब लिख देना, बिकॉज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, दिस टर्म शुड बी देयर इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, उसको पता तो चलेगा कि बच्चे को ये सारी चीजें आती है। ऑल राइट, तो दिस थिंग इज देयर, मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट अप करता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन, ये दिस इज डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर का तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब मेरे पास ये आ गया तो बच्चा आई कैन जस्ट सिंपली से दैट दिस थिंग इज कन्वर्टेड इनटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड cos x square x dx। तो this is going to be sec square x dx plus इंटीग्रेशन ऑफ cos x square x dx। आई होप आपको इसका पता होगा कि हमने कैसे किया है, ऑल राइट। तो इसके फॉर्मूलेस हमने पहले ही कर रखे हैं, एंड बच्चा सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ, बार बार टैन स्क्वायर को हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू गिव मी टैन एक्स, और इसका होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, एंड प्लस, बहुत इजीली हो गया ये एक्सरसाइज। एंड लाइक दिस वे ऑल ऑफ यू वर देयर टुगेदर फ्रॉम बिगनिंग टिल द लास्ट। आई जस्ट से दैट ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ मी, वीडियो चला लो एंड जस्ट गो विद इट। By the time we'll meet in the next class with exercise 7.3. By the time, have a nice day and please keep practicing. Thank you everyone. Bye bye.